उसका नाम है टॉनिफ और उस तरफ M2M रसोई। इन्फोसिस वालों कुछ याद है तो कमेंट करके बता दो। 18 डिग्री में तो लोग जैकेट पहनने लग जाते हैं यहाँ पे, मैंने देखा है। सो हियर इज़ नमन एंड आई मेट हिम टुडे। Actually, we have met before, but I met him again. So last time I came to a battle, that time I saw him, and he's a great performer. He does these battles and underground dance battles. So would you say a few words like how do you practice and what, like how much time you give to dance? Yeah, bro. Like I've been dancing like since 5 years. Been Okay. like practicing like all day and all. Like now, usually before I used not to get like these studios and all. Used to like roam everywhere, like asking everyone studios and all to practice. Now, so I planned one thing. I put mirrors in my Okay. room itself. Okay. So daily I practice at home. Like all the night I practice. So this is how. And daytime you are having classes or something? Daytime it is like I go to college and I come back. Sometimes I come here to take class and I play basketball also. I go for a practice there also. I come here, take class, college, and night I practice at home. Like I give time for myself. That's very nice. That's very nice. So great. Like Yes. you are dedicated towards dance, and I hope you do great. Thank you, bro. Yeah. Hopefully one day. Yeah, definitely. Hey guys, so this is Manu, and he's the supervisor of this ARC Sports Complex. So Manu, can you tell us about like when this complex was established and what kind of professional training? And we have like a professional training: dance, kung fu, karate, yoga, zumba, badminton, football, and swimming. It's established on 2018. Okay. We have now recently we have opened 3 restaurants also, like a theme-based restaurant. It's a cockpit and a goal post and take a break. Okay. We have snooker too. So is there any like this complex would be expanded or like this is? We have only one branch now. It's only one branch. We have in only my new college. ओके तो गाइस, क्योंकि हमने दोपहर को कुछ खाया नहीं था तो उसके बाद हमने खाना खाया और उसके बाद डांस प्रैक्टिस करी थोड़ी बहुत, और फिर हमने डांस वीडियो भी रिकॉर्ड करी जो कि आपको इंस्टाग्राम में दिख जाएगी मेरे डांस वाले पेज पर। नमन के साथ रिकॉर्ड किया और अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे उसके बाद, और अब हम जा रहे हैं सिटी बस स्टैंड के पास थोड़ी मिठाइयाँ लेने। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये मार्केट में मैं आता था और यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रूट्स वगैरह ख़रीदता था। यहाँ पे ऐसा अभी तो भीड़ कम है, पहले बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। और वो है जो सर्कल है वहाँ पे बहुत भीड़ होती थी। फ़िलहाल तो अभी कुछ है नहीं, लोग नहीं दिख रहे ज़्यादा, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया लोगों को। डू यू टेक गूगल पे? ओनली कैश। तो भाई मिठाई ले ली है, और ये बात ध्यान रखना, यहाँ से अगर आप मिठाई लेते हैं तो आपको कैश लाना पड़ेगा। यहाँ पे गूगल पे, कार्ड, पेटीएम कुछ भी नहीं चलता, सिर्फ कैश ही चलता है। और हाँ, इन्होंने कहा कि खाने से पहले इसको माइक्रोवेव करना। तो भाई साहब यही पैलेस है, और अभी तो शांत शांत सा लग रहा है, लाइटें अभी ज़्यादा नहीं है, बट दशहरा के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी लाइटें होती हैं। और 1 महीने पहले ही यहाँ पे सारी सड़कों पे लाइट्स लगा देते हैं और काफ़ी बढ़िया माहौल रहता है यहाँ का। तो अभी मैंने देखा कि लाइट्स लगाना शुरू कर दिया है उस रोड पर। एंड व्हेन इज़ दशहरा? सितंबर, अक्टूबर। हाँ, अक्टूबर में दशहरा होता है, तो अगस्त सितंबर में लाइटें लगाना शुरू कर देते हैं। और उस साइड में एक ग्राउंड है, वहाँ पर मेला भी लगता है 1 या 2 महीने का। पिछली बार मैं गया था 2019 में, 2020 में, 2020 में नहीं, 2019 में गया था। तो भाई अभी नमन ने बताया कि इसको ठंड लग रही है स्कूटी में, क्योंकि इनके लिए 20 डिग्री भी ठंड है। 18 डिग्री में तो लोग जैकेट पहनने लग जाते हैं यहाँ पे, मैंने देखा है। जो लोकल्स होते हैं 18 डिग्री में जैकेट, स्वेटर ये सब पहनते हैं यहाँ पे। तो अभी हमने लेमन जूस लिया हुआ है, इट्स गुड एक्चुअली। विच इज़ दिस प्लेस ब्रो, दिस रोड? This is Bunny Mandap. Bunny Mandap. Okay. And till what time this will be open? This shop? This will be till 11 o'clock. Till 11 o'clock. That's great, man. Bye. And nice Have meeting a you. good journey, bro. Yeah, you ride safe and come to Delhi and do let me know Sure, if you bro. come. One day, So, take I'll come care. and I'll call you.
Yeah, sure. Yeah, bye. Bye. Good morning guys. Today is a new day and आज संडे है. नमन अभी गया है ये टी शॉप में मुझे छोड़ के, और मैंने सब रेडी हो गया हूँ और सारा सामान रख लिया है. अभी चाय पी के फिर मैं टहलने निकलता हूँ. यहाँ से ये तो ARC आ गया जो कल वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, और इसके आगे से हम लेफ़्ट लेके अगर उस तरफ जाएंगे तो इन्फोसिस आ जाएगा. I'm about to reach. This is the bus stop. और इसके आगे ये मैगी पॉइंट है जहाँ से हम मैगी वगैरह खाया करते थे. एंड आगे गेट 2 है Infosys. and here it is, gate 2. And what about trainees? Trainees are coming? Trainees, yes. 4 batches coming already. 4 batches. Recently they joined? Yeah, last Actually, I am an ex-Infosys. I left Infosys. Now I joined a new company. तो हाँ, बोला एम्प्लॉयज़ काम करने आते हैं कुछ लोग, और ट्रेनीज़ के 4 बैचेस यहाँ पे अभी चल रहा है. अब कैंपस के अंदर तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि आई एम नॉट एन एम्प्लॉय. यहाँ पे हम बैठा करते थे इनमें, और ये अभी मैं थोड़ा आगे तक चलता हूँ और देखता हूँ आगे कुछ स्कूटी वगैरह रेंट पे या ऐसा कुछ मिलता है कि नहीं. आगे भी एक वो है M2M करके, पहले तो था, अभी पता नहीं है कि नहीं. वहाँ हम खाया करते थे. और उसके आगे एक रसोई करके रेस्टोरेंट है, वहाँ से हम अक्सर खाया करते थे. उसका नाम है टॉनिफ. और उस तरफ M2M रसोई, ये सारे कुछ खाने पीने की जगह हैं. और उस तरफ गोल्डन ग्रास है, वहाँ भी जाते थे. आई डोंट नो अभी खुला है कि नहीं. लेट्स सी. दिस इज M2M. ये तो बंद है. और यहाँ पे यार ये सारी दुकानें खुली होती थी. इनसे पूछता हूँ. भैया स्कूटी मिलती है क्या रेंट पे? यहाँ पर स्कूटी मिलती है रेंट पे? इजी रेंटल. कितना होता है? यहाँ पे ये सारी दुकानें बंद है. पहले तो खुला होता था ना. M2M, टॉनिफ, रसोई. रसोई इधर है ना. खुला है क्या? उधर है. अच्छा. और ये M2M बंद है. उन्होंने कहा कि यहाँ पर इजी रेंटल है, इस तरफ मिलेगी स्कूटी. देखता हूँ. वो पंजाबी यहाँ भी आते थे यार खाने के लिए, यहीं बैठा करते थे इन टेबल्स पे. इन्फोसिस वालों कुछ याद है तो कमेंट करके बता दो. अच्छा कमेंट कर देना. 550 प्लस GST है. फॉर हाउ मेनी आवर्स? फुल डे. बट फुल डे तो नहीं चाहिए ना मुझे. और कोई रेंटल नहीं है ना यहाँ पे? इधर इन्फोसिस गेट 2 में पास है. गेट 2 में कहाँ पर है? तो यार मैंने काफ़ी सोचा और थोड़े कैलकुलेशंस किए, थोड़ा मैथ किया, और फाइनली मैंने ये कंक्लूड किया है कि मैं स्कूटी या बाइक रेंट पे नहीं लूँगा. यहाँ तो ये 325 प्लस GST बता रहा था, जो कि अराउंड 350 हो जाएगा. फिर उसके बाद पेट्रोल ऐड करेंगे तो 100 रुपये का तो पेट्रोल डलेगा ही, 450 तक हो जाएगा. और अगर मैं ऐसे रैपिडो लेके जाता हूँ, और मुझे कहीं ज़्यादा तो जाना नहीं है, यहाँ जाऊँगा सूर्या बेकरी, फिर वाटर टैंक की तरफ जाऊँगा अपने पुराने घर के पास, मतलब जहाँ मैं रहता था पहले. उसके बाद आई थिंक चामुंडी हिल्स हो सके तो वहाँ जाऊँगा. उसके अलावा मुझे कहीं जाना नहीं है. उसके बाद मेरी शाम को मैं ट्रेन ले लूँगा वापस बेंगलोर के लिए अराउंड 5 बजे के आसपास. ये सारे कैलकुलेशंस करके मैंने देखा रैपिडो में मेरे को सस्ता पड़ेगा, या अगर ऑटो लूँगा वो भी मेरे को सस्ता पड़ेगा. यही है. उन्होंने कहा आगे भी एक इन्फोसिस गेट 2 के आगे आई थिंक गेट 4 के पास कोई रेंटल शॉप है, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक स्कूटी फॉर रेंट, क्योंकि
इट्स नॉट इकोनॉमिकल। तो गाइस दिस इज़ द मैगी पॉइंट। यहाँ पे हम आते थे, मैगी वगैरह खाते थे और बहुत सारी चीज़ें खाते थे। यहाँ पे चाय की दुकान भी होती थी, यहाँ जूस की दुकान भी होती थी, जूस भी पीते थे। और ये यहाँ पर काम करते हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। सो अभी ट्रेनिंग्स आते हैं यहाँ पे? अभी आते कम आते हैं, बहुत कम आते है ना। ये जो अभी नेक्स्ट जुलाई एंड में ये ओपन हो जाता है, ये वाला मैगी पॉइंट, ये रेस्टोरेंट? ये रेस्टोरेंट बनेगा। अच्छा, जुलाई एंड तक? जुलाई एंड तक। यहाँ पे वो टेबल चेयर सब डलेगा? हाँ, सभी टेबल होता है, चेयर होता है। अच्छा, सब तैयार हो रखा है? इसमें काम चल रहा है अभी। हाँ हाँ। ये पूरा पीछे लेबर आ रखे हैं उसके हाँ हाँ। काम करने के लिए। ये हमारा किचन है। अच्छा, इसमें नॉर्थ इंडियन तंदूर, नॉर्थ इंडियन तंदूर चाय सभी वगैरह। होता है किचन। अच्छा, ये हमारा ये वॉशरूम। हाँ हाँ, काफ़ी बड़ी जगह है, काफ़ी बड़ी जगह है ये तो। और यहाँ पे हैंड वॉश? ये हैंड वॉश की है, मैगी सर्विस ओनली। अच्छा, मैगी का सेपरेट है? सेल्फ सर्विस होता है इधर से। हाँ हाँ। सेल्फ सर्विस के लिए है ना, स्टैंडिंग हाँ हाँ। खास